تو آئیے ایک ایک سنت کو ہم لوگ مع دلیل جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، السواک، مسواک کرنا۔ وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کرنا یہ وضو کی سنتوں میں داخل ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امتوں پر پریشانی اور مصیبت کا خوف نہ کھاتا تو ان کو میں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اگرچہ مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا لیکن آپ نے اپنی دلی خواہش کا اظہار فرمایا، لہٰذا وضو کے وقت مسواک کرنا یہ پہلی سنت ہے۔ دوسری سنت ہے غسل الکفین فی اول الوضو۔ وضو شروع کرتے ہوئے دونوں ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے، کیونکہ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور ایک سے زائد مرتبہ دھونا یہ کیا ہے؟ سنت میں شامل ہے۔ لما ثبت عن عثمان رضی اللہ عنہ فی حکایتہ لوضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ غسل کفیہ ثلاثا، اس لیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو پیچھے گزر چکی ہے اس میں انہوں نے جو وضو سکھایا لوگوں کو اور بتایا کہ اللہ کے نبی نے اسی طرح سے وضو سکھایا، اس میں 3 مرتبہ دھونے کا تذکرہ ہے۔ تو صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ دونوں ہتھیلی کو 3 بار دھونا چاہیے۔ تو یاد رہے ایک بار دھونا فرض ہے اور ایک سے زائد یعنی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے اور ایک بار دھونا فرض ہے۔ تیسری سنت ہے الجمع بین المضمضۃ والاستنشاق ثلاثا بغرفۃ، ایک چلو پانی کے ذریعے سے 3 مرتبہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ایک ہی ساتھ، یہ تیسری سنت ہے۔ اس لیے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو ان کو سکھایا تھا انہ تمضمض واستنشق، تو اللہ کے رسول نے کلی بھی کیا اور ناک میں پانی بھی چڑھایا، من کف واحدۃ، ایک ہی چلو پانی کے ذریعے سے، ففعل ذلک ثلاثا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ کیا۔ چوتھی سنت ہے المبالغۃ فیہما لغیر الصائم، جو روزے سے نہ ہو اس شخص کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے کام لینا، یعنی اچھی طرح سے کلی کرنا اور اچھی طرح سے ناک میں پانی چڑھانا، یہ چوتھی سنت ہے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، ناک میں پانی چڑھانے میں تم لوگ مبالغہ سے کام لو، ہاں اگر روزے سے ہو تو احتیاط کرو۔ 5ویں سنت ہے تقدیم الیمنی علی الیسری، دائیں کو بائیں پر مقدم رکھا جائے، یعنی دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے، یہ سنت میں داخل ہے۔ لحدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی تناولہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کو ہر معاملے میں پسند فرماتے تھے، چاہے جوتا پہننے میں ہو، چپل پہننے میں ہو، یا کنگھی کرنے کے وقت ہو، یا پاکی حاصل کرنے کے وقت ہو، وفی شانہ کلہ، اور آپ اپنے ہر معاملے میں ہر شریف کام میں دائیں سے شروع کرتے تھے، دائیں کو مقدم رکھتے تھے۔ وَلِمَا فِي حَدِيثِ عثمان فِي حِكَایَتِهِ لِوُضُوءِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ غَسَلَ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى، اور اس لیے بھی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں جس میں وضو کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دایاں کو دھویا پھر بایاں کو دھویا، پہلے دائیں ہاتھ کو دھویا، دائیں پیر کو دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو بائیں پیر کو دھویا، تو لہٰذا دائیں کو بائیں پر مقدم رکھا جائے گا، یہ 5ویں سنت ہے۔ نمبر 6 ملنا، مل کر دھونا، اعضائے وضو کو اس طرح سے دھونا چاہیے کہ کہیں کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے، اس لیے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
उतिया बिसुलुसै मुद्दिन, अल्लाह के रसूल के पास एक मुद्द के 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा पानी लाया गया। फतवद्दा, तो आपने वज़ू फरमाया। फजअला यदलुकु ज़िराइही, तो अल्लाह के रसूल अपने दोनों बाजू को अच्छी तरह से मलने लगे, मल कर धोने लगे। तो लिहाजा वज़ू में ख़ास ख्याल रखा जाए कि आपके आज़े वज़ू में से कोई भी जगह सूखी ना रहे। नंबर 7, तस्लीसुल गस्ली, 3 बार धोना। लिहदीस उस्माना अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ सलासन सलासन, इसलिए कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा धोया। वक़द सह्हा अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ मर्रतन व मर्रतैन व मर्रतैन, और ये भी साबित है कि अल्लाह के रसूल ने एक बार भी धोया, और ये भी साबित है कि अल्लाह के रसूल ने 2 मरतबा भी धोया। तो एक बार धोना फ़र्ज़ है और 2 मरतबा या 3 मरतबा धोना ये सुन्नत है। अगर एक बार धोने में भीग जाता है, सही से पानी पहुंच जाता है, तो दूसरी बार धोने की ज़रूरत नहीं है, और अगर दूसरी मरतबा पानी पहुंच जाता है तो तीसरी मरतबा धोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 मरतबा धोना यह सुन्नत है। वयस्तहिब्बु तिक्रार मसहि रअस अहयाना, और कभी कभार अपने सर का 2 से 3 मरतबा मसाह करना भी मुस्तहब है। लिमा सह्हा अन उस्माना, इसलिए कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सही रिवायत साबित है अन्नहु तवद्दअ फमसहा रअसहु सलासन, कि उन्होंने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद अपने सर का 3 मरतबा मसाह किया। वक़ाला, और कहा, रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ हाकज़ा, मैंने अल्लाह के रसूल को इसी तरह से वज़ू करते हुए देखा है। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस से ये बात मालूम होती है कि सर का 3 मरतबा मसाह करना चाहें तो कर सकते हैं, ये मुस्तहब्बत में दाखिल है। नंबर 8, अत-तरतीब, तरतीब का ख्याल रखना। तरतीब का मतलब क्या हुआ? जो तरतीब हदीस में बयान की गई है कि पहले हथेली को धोना है, फिर कुल्ली करना है, नाक में पानी चढ़ाना है, फिर चेहरे को धोना है, फिर दायां हाथ को धोना है, फिर बायां हाथ को धोना है, उसके बाद दाएं पैर को, उसके बाद फिर बाएं पैर को धोना है। तो जो तरतीब बयान की गई है उस तरतीब का ख्याल रखना, उसी तरतीब से वज़ू करना ये सुन्नत है। लिअन्नहुल गालिबु फी वज़ूइ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह से वज़ू किया करते थे। कमा हकाहु मन हका वज़ूअहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह से कि उन लोगों ने बयान फरमाया जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल के वज़ू को बयान फरमाया। लकिन्नहु क़द सह्हा अनिल मिक़दाद बिन मादी करीब, लेकिन मिक़दाद बिन मादी करीब से एक सही रिवायत भी आई है। वो कहते हैं अन्नहु उतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवज़ूइन, अल्लाह के रसूल के पास वज़ू के लिए पानी लाया गया। फतवद्दअ फग़सला कफ़ैहि सलासन, तो आपने दोनों हथेली को 3 मरतबा धोया। वग़सला वजहहु सलासन, फिर आपने अपने चेहरे को 3 मरतबा धोया। सुम्मा ग़सला ज़िराइही सलासन, फिर आपने अपने दोनों बाजू को 3 मरतबा धोया। सुम्मा तमदमदा वस्तनसरा सलासन, फिर आपने कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया 3 मरतबा। सुम्मा मसह बिरासिही व उदुनैहि, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर और कान का मसाह किया। तो इस हदीस से पाक में बताया गया कि तरतीब का ख्याल रखना ये सुन्नत है। नंबर 9, अद्दुआ बादहू, वज़ू से फारिग होने के बाद, वज़ू के बाद की जो दुआएं हैं उन दुआओं को पढ़ना ये भी सुन्नत है। लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिनकुम मिन अहदिन यतवद्दउ फयस्बगुल वज़ूअ थुम्मा यक़ूल, तुम में से जो भी शख्स वज़ू करता है और अच्छी तरह से मल कर धोकर वज़ू करता है और वज़ू से फारिग होने के बाद ये दुआ पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस दुआ को पढ़ लेता है तो उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुशखबरी सुनाई है। वो खुशखबरी है इल्ला फुतिहत लहू अबवाबिल जन्नति समानिया, जन्नत के 8 दरवाजे उस शख्स के लिए खोल दिए जाते हैं। यदखुलु मिन अय्यहा शाआ, और उन दरवाज़ों में से जिस दरवाज़े से चाहेगा वो दाखिल हो जाएगा। वज़ू के बाद इस दुआ को पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा फजीलत बयान की गई है, तो लिहाजा इस दुआ को पढ़ना चाहिए। और इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब तिरमिज़ी में इस दुआ के बाद एक दुआ और नकल फरमाए हैं, वो ये है कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन
वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, या अल्लाह तो हमें तौबा करने वालों में से बना दे और मुझे पाक साफ़ रहने वालों में से बना दे। तो ये दुआ भी पढ़ना चाहिए। यानी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इस दुआ को पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना, इस दुआ को भी पढ़ सकते हैं। वअन अबी सईद अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन तवद्दअ फ़क़ाल, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद कहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जो इस दुआ को पढ़ लेता है वज़ू करने के बाद, कुतिबा फ़ी रक़्क़िन, तो एक सफ़ेद सहीफ़े में इस दुआ को लिख लिया जाता है। सुम्मा तुबिया बिताबिइन, फिर मुहर लगाने वालों के ज़रिए से मुहर लगा दी जाती है। फ़ला युक्सरु इला यौमिल क़ियामा, फिर क़यामत तक इस मुहर को खोला नहीं जाता। तो गोए कि इस दुआ की बड़ी अहमियत है, बड़ी फ़जीलत है। 10वीं और आखिरी सुन्नत, सलातु रकअतैन बादहू, 2 रकात नमाज पढ़ना वज़ू करने के बाद। क़ौल उस्मान बाद अन अल्लमहुम सिफ़त वज़ूइ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को अल्लाह के रसूल के वज़ू के तरीक़े को बताने के बाद लोगों से ये कहा था, रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ नहव वज़ूइ हाज़ा, कि मैंने अल्लाह के रसूल को देखा, अल्लाह के रसूल ने इसी तरीक़े से वज़ू फरमाया। और वज़ू करने के बाद अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, जो शख्स मेरे तरीक़े पर इसी जैसा वज़ू करेगा, सुम्मा क़ामा, फिर खड़ा होगा, फ़रका रकअतैन ला युहद्दिथु फ़ीहिमा नफ़्सहू, फिर वो खुशू के साथ 2 रकात नमाज अदा करेगा, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो उसका पिछला गुनाह माफ़ हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने वज़ू करने के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ने का एहतिमाम किया है। लिहाज़ा वज़ू करने के बाद 2 रकात सुन्नत भी पढ़नी चाहिए और उसकी अहमियत भी बताई गई कि पिछला गुनाह माफ़ हो जाता है।